بجٹ میں اعلیٰ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کی خطیر رقم مختص۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت 170 ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 39.5 ارب روپے مختص۔ 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت جاری رکھنے کے لیے حکومت کا 31 منصوبوں کے لیے 4.8 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ دانش اسکولوں کی تعمیر کے لیے 9.8 ارب روپے مختص۔ بجٹ میں مسلح افواج، سولجرز، افسران کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس کا اعلان۔ اہل ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ اخراجات مالی سال 2025-26 کے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ حکومت کا خصوصی ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کا بھی اعلان۔ ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 روپے کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب روپے کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ۔ تمام ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کے مطابق 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 1% ہوگی۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ تقریر کے مطابق 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر کرنے کی تجویز۔ اس کے علاوہ 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس شرح کم کر کے 23% کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بجٹ تقریر میں پینشن اصلاحات کا اعلان۔ فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ۔ نئی اصلاحات کے تحت قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور پینشن میں اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک کیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں ملازم کو پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ای کامرس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر اشیاء پر ٹیکس لگے گا۔ ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پر بھی ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ای کامرس پر کاروبار کرنے والوں کو ماہانہ ٹرانزیکشنز ڈیٹا اور ٹیکس رپورٹ دینا ہوگی۔ سود کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% بڑھا دی گئی، جسے 15 سے 20% کرنے کی تجویز۔ فیصلے کا اطلاق غیر فعال طریقے سے حاصل کردہ آمدنی پر ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اخراجات کے لیے 6 ارب 64 کروڑ روپے مختص۔ عدالت عظمیٰ کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز پر 3 ارب 26 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ افسران کی تنخواہوں کے لیے 54 کروڑ اور دیگر عملے کے لیے 91 کروڑ روپے مختص۔ عدالت عظمیٰ کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والے فوائد کی مد میں 23 کروڑ 80 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ سپریم کورٹ کے آپریٹنگ اخراجات کا بجٹ 1 ارب سے زائد مقرر۔ وفاقی حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کے ٹرانسفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم۔ مارگیج فائنینسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کر دی گئی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا۔ یکم جولائی سے ٹیکس گوشواروں کو بہت آسان کر دیا جائے گا۔ تنخواہ دار اور چھوٹے کاروباری وکیل کی مدد لیے بغیر ہی گوشوارے بھر سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وفاقی بجٹ کی تقریر میں کہا، ایف بی آر کو تبدیل کیے بغیر معاشی اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایف بی آر میں بہتری کے لیے منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح مزید بڑھا دی گئی۔ بینک سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی۔ نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ نان فائلرز سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکے گا۔ بجٹ تجویز کے مطابق نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکے گا۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔
वफाकी बजट में 800 सीसी 85 तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इक़दाम का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। बजट में दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत और फर्नेस ऑयल पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। कहा, बजट लीगी कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआविन साबित होगा। नए माली साल का ये बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट IMF का करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी जोड़ तोड़ के बगैर भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल न कर सकी। पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की पजीर मुल्कों में भी कम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्ट्रक्चर रिफॉर्म जीरो, पेंशन रिफॉर्म जीरो। हुकूमत किसी एक भी इदारे की निजकारी नहीं कर सकी। सियासत को मईशत से अलग कर दे, हमारी अच्छी तजवीज़ पर अमल करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला का अहम इजलास। इदारों के दरमियान बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला। इंफॉर्मेशन और डेटा के बरवक्त तबादले को उन्होंने इंतहाई अहम करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारे एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इदारों की अफरादी क़ुव्वत को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मोहसिन नकवी की तरबियती कोर्सेज में सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान को नामज़द करने की हिदायत। पाकिस्तान भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी जैसे तमाम तनाज़ात के हल के लिए बामानी मुकालमे का ख्वाहिशमंद है। आलमी बरादरी बिलखुसूस अमरीका और बरतानिया भारत को बातचीत पर आमादा करें। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं, खित्ते में हालात अब भी नाजुक हैं। जंग बंदी तो हुई लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। सिंध हुकूमत का मजीद बसें और EV टैक्सीज और स्कूटर्स खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील मेमन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बस मनसूबे पर ब्रीफिंग। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जदीद और पायदार ट्रांसपोर्ट निज़ाम सिंध हुकूमत की तरजीह है। पीपल्स बस और EV बसेस कराची में कामयाबी से चल रही हैं। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ दिया गया। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने बजट को गरीब के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। बोले, महंगाई की मौजूदा शरह के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। बजट में पेट्रोल और बिजली पर टैक्सों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हर चीज को महंगा कर देता है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए जैसे सोलर पैनल्स पर भी टैक्स आयद करके आवाम से उनका आखिरी सहारा भी छीना लिया। हंसता खेलता बच्चा खुशी की अलामत है। बच्चों का खेलना महज तफरी नहीं, जहनी, जज्बाती और तख्लीकी नशोनुमा की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पर पैगाम। कहा, हर बच्चा कोई ना कोई सिर्फ तालीम बल्कि खेलने, सीखने और बेफिक्री से मुस्कुराने का हक हासिल है। अफसोस है कि कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चे खेल समेत दीगर तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में खेल के जरिए भी बच्चों को तालीम दी जा रही है। पहली परवाज PK 732 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। गुफ्तगू में कहा, कोई शक नहीं, हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत ने हज्जाज को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की।
हुकूमत आइंदा साल इससे भी बेहतर इंतजाम करेगी। आज़मीन को हर मुमकिन मदद फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पहली परवाज से पहुंचने वाले हुज्जाज कराम ने वजारत मजहबी उमूर की जानिब से किए गए हज इंतजामात को सराहा। पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में था। गहराई 211 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। लाहौर से सियालकोट जाने वाली मुसाफिर वैन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। मोटरवे पुलिस M2 ने 7 मुसाफिरों की जिंदगियां बचाकर फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस के अफसरान ने फौरी कार्रवाई करते हुए वैन को रोका। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर इंडेक्स 383 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,22,024 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अमरीकी खातून ने जंग पहुंचकर नौजवान से शादी कर ली। अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना इस्लामी नाम कनीज आयशा रख लिया। निकाह करके मकामी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। साउथ कैरोलिना की रिहायशी 27 साल अमरीकी खातून की जंग के रिहायशी 29 साल नईमुल हसन से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाया जाएगा। जनूबी एशिया हाल ही में संगीन तनाज़े से बाल बचा। जनूब और वस्ती एशियाई उमूर के लिए अमेरिका के नामजद मुआविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की गुफ्तगू। कहा, तौसीक की गई तो पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाऊंगा। ओहदे से फाइज किया गया तो भारत और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए काम करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से जौहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात हैं। फिलहाल ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के देरीना इख्तलाफात को भी हल करेंगे। दुनिया उन्हें जानती है। वो वाहिद शख्स हैं जो फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रंप बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि ये इस्तेहकाम आगे भी बरकरार रहेगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन छापों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लॉस एंजलिस में इमरजेंसी कर्फ्यू नाफिज। पुलिस ने सैकड़ों मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी इलाके में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी कर्फ्यू नाफिज। मेयर कैविन बॉस के मुताबिक कर्फ्यू अगले कई दिनों तक जारी रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 4 दिनों में कम अज कम 378 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 200 अफराद गिरफ्तार हुए। साबिक कप्तान और मायनाज ऑलराउंडर सना मीर की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों की मुबारकबाद। फास्ट बॉलर डियाना बैग ने पैगाम में कहा, हमें आप पर फख्र है। आपने मैदान में और मैदान से बाहर हमारी भरपूर रहनुमाई की। रामीन शमीम बोली, सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का भी खिराज तहसीन। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान दर्जा हरारत 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरियों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप में न जाने की हिदायत जारी। बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मशवरा।